Hello students, welcome to the 12th session on chapter number 6 triangles. In this video we'll be doing question number 1 to question number 5 of optional exercise 6.6. So starting with question number 1. In figure 6.56, PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR, and we have to prove that QS upon SR, this QS upon SR is equal to PQ upon PR. So we are given that PS is the bisector of angle QPR. PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. और हमें प्रूव क्या करना है? We need to prove that QS upon SR is equal to PQ upon PR. This we have to prove. So before proving it, we'll do one construction. So the construction here will be, we'll draw a line which is parallel to PS and is drawn from the point R. So construction will be something like this. So here we have drawn a line MR which is parallel to PS. So by construction we have draw MR parallel to PS, where M is a point on QP produced. Proof. So as we know that if a line is parallel to one side of a triangle, like in triangle QRM, PS is parallel to MR. In triangle QMR or QRM, line PS is parallel to MR. So that means QS upon SR will be equal to QP upon PM. Because if PS is parallel to MR, then QS upon SR will be equal to QP upon PM by basic proportionality theorem. This we have already studied in exercise 6.2. So this is by basic proportionality theorem. Now, since PS is the bisector of angle QPR, let us assume this angle is angle 1, this is angle 2. So here angle 1 is equal to angle 2, this is given. Okay. Also this angle 2 will be equal to angle 3, because if this is parallel to PS is parallel to MR, then angle 2 and angle 3 will be alternate interior angles. So that means angle 2 will be equal to angle 3, alternate interior angles. And angle 1 will be equal to angle 4. Angle 1 will be equal to angle 4. This is corresponding angles. So angle 1 is equal to angle 2, angle 2 is equal to angle 3, also angle 1 is equal to angle 4. So from this we can conclude that angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4. Or from this result I can conclude angle 3 is equal to angle 4. Or I can say angle 3 is equal to angle 4. And this we have already studied in class 9, that if in a triangle two angles are equal, like in this case angle 3 is equal to angle 4. So in triangle PMR, therefore in triangle PMR, side opposite to angle 3 and side opposite to angle 4 will be equal. So side opposite to angle 3 is PM and opposite to 4 is PR. So that means PM will be equal to PR. PM will be equal to PR, because sides opposite to equal angles are equal. So you will get PM is equal to PR. So since PM is equal to PR, we will replace PM with PR in equation number 1. Therefore from equation number 1 and 2, this is the second equation. Simply we'll replace PM with PR.
So we can say QS upon SR will be equal to QS upon SR will be equal to QP upon PR. QP upon PR. And this was required. यही चीज हमें प्रूव करनी थी, hence proved. यही चीज प्रूव करनी थी, QS upon SR is equal to PQ upon PR. ये चीज यहाँ पे प्रूव करनी थी. PM की जगह सिंपल हमने PR को रिप्लेस कर दिया. Okay. Moving on to the next question. Question number 2. In figure 6.57, D is a point on hypotenuse AC of triangle ABC. So D is a point on hypotenuse AC such that DM is perpendicular to BC. This is perpendicular to BC. DM is perpendicular to BC. DN is perpendicular to AB. And BD is also perpendicular to AC. So here we are given that triangle ABC, where angle B is 90 degrees, BD is perpendicular to AC, DM is perpendicular to BC, and DN is perpendicular to AB. All this is given. And we have to prove first part, dm square is dn multiplied by mc. Second part, dn square is dm multiplied by an. Proof. Now considering the quadrilateral DNBM, in quadrilateral DNBM, here we can see all the four angles are 90 degree. This angle is given as 90 degree. This angle B is also 90 degrees. Angle N is also 90 degrees. So if we calculate angle D, that is angle NDM, by angle sum property, this will also be 90 degrees. So this quadrilateral, in this, all the angles are equal to 90 degree. All angles are right angles. Therefore, DNBM is a rectangle. सारे एंगल्स 90 डिग्री आ रहे हैं तो ये बन गया रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. ठीक है, जिसको हम बाद में यूज करने वाले हैं. जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर प्रूव करने वाला वो ये है कि dm स्क्वायर इज इक्वल टू dn मल्टीप्लाइड बाय mc. सो अगर हमें dm स्क्वायर चाहिए तो हम ऐसे दो ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें दोनों में साइड dm आती हो. सो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे और यहाँ से हमें dm स्क्वायर मिलेगा. सो एक एंगल तो यहाँ पे 90 आ रहा है. दूसरे एंगल के लिए हमने इसको लेबल कर दिया, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3. सो angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degrees because BD is perpendicular to AC, and angle 2 plus angle 3 will also be 90 degrees because अगर हम triangle DMB consider करें तो ये 90 दे रखा है, 2 और 3 को भी 90 होना पड़ेगा, तभी angle sum property से 2 और 3 का sum 90 आएगा. So ये आया हमारे पास angle sum property of triangle DMB. इससे 2 + 3 90 आ गया. सो 1 + 2 बराबर हो गया 2 + 3 के, जिससे कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 3 के. तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया. एक एंगल 90 दे ही रखा था. सो इन ट्राइंगल DMC एंड ट्राइंगल, DMC के कॉरेस्पॉन्डिंग नेम बनेगा इसका BMD, क्योंकि एंगल D के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल B है. M के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर वाला M है, 90 यहाँ पे 1 और 3 थे, और तीसरा C और D जो बचा है वर्टेक्स. सो यहाँ पे हम लिखेंगे DMC ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के. दिस इज प्रूव्ड अबव. ऑल्सो एंगल DMC इज इक्वल टू एंगल BMD. दिस इज ईच 90 degrees. Therefore by double A similarity, triangle DMC is similar to triangle BMD. So if DMC is similar to triangle BMD, therefore DM upon BM is equal to
MC अपॉन MD इज इक्वल टू DC अपॉन BD। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 2 को ले लें, अच्छा इसका रीजन आएगा बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर हम पहले 2 को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो MD मल्टीप्लाइड बाय MD, दिस विल बी MD स्क्वायर और DM स्क्वायर विल बी इक्वल टू MC मल्टीप्लाइड बाय BM। बट ये हमें प्रूव नहीं करना, DM स्क्वायर मैच हो गया, MC एक मैच हो गया, यहाँ पे DN चाहिए हमें जबकि हमारा BM आ रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूव किया था तो ये जो BM है, BM है, इसकी जगह हम DN लिख सकते हैं बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो दैट मीन्स दिस DM स्क्वायर will be equal to MC multiplied by DN, DN, opposite sides of rectangle। क्या रेक्टेंगल का नाम है? DNBM, DNBM। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सिमिलर तरीके से हमें सेकंड पार्ट को करना है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे DN स्क्वायर चाहिए, तो सेम चीज करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग डाल देते हैं। सपोज दिस इज एंगल 4, दिस इज 5 एंड दिस एंगल इज 6। सेम तरीके से 4 + 5 अब 90 है। एंगल 4 + एंगल 5 इज 90 डिग्रीज बिकॉज BD जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, बिकॉज BD इज परपेंडिकुलर टू AC। सिमिलरली 5 और 6 इनका सम 90 हो जाएगा। एंगल 5 + एंगल 6, दिस इज 90 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन से ट्राइंगल में? DAN में, ऑफ ट्राइंगल DAN। तो एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो अब ये वाला एंगल 4 इक्वल हो गया एंगल 6 के, इसके। तो एक एंगल 90 90 था और 4 और 6 इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल DNB, सो इन ट्राइंगल DNB एंड ट्राइंगल, तो DNB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नेम आएगा? AND, क्योंकि D के कॉरेस्पॉन्डिंग A एंगल इक्वल है, सो दिस विल बी AND, एंगल ट्राइंगल AND। सो एंगल्स कौन से हैं? 4 और 6 इक्वल है, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल DNB इज इक्वल टू एंगल AND। इसका रीजन प्रूव्ड अबव और इसका ईच 90 डिग्रीज। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी triangle DNB will be similar to triangle AND। और DNB अगर AND के सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल, therefore DN upon AN is equal to NB upon ND is equal to DB upon AD। इन दोनों को ले लेते हैं, ये बाय CPST है। और अगर हम इन दोनों को लेंगे तो यू विल गेट DN स्क्वायर इज इक्वल टू AN मल्टीप्लाइड बाय NB। मैच करके देखते हैं, तो DN स्क्वायर इज AN मल्टीप्लाइड बाय NB आ रहा है जबकि DM चाहिए, तो वही सेम रीजन NB जो है वो DM के बराबर है। सो इन प्लेस ऑफ NB आई कैन राइट DM। सो NB की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं DM। सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल DNBM, hence proved। Okay, moving on to question number 3। So in figure 6.58, triangle ABC is a triangle in which angle ABC is greater than 90 degrees। So we are given triangle ABC where angle ABC is greater than 90 degrees. Also AD is perpendicular to CB. This is CB produced. This is given, and we need to prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2 times BC into BD।
ये प्रूफ करना है। प्रूफ। सो दो राइट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दोनों में बस हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और थोड़े से चेंजेस करने। तो सबसे पहले यहाँ पे ए सी स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला। सो इन ट्राइंगल ए डी सी we'll get AC square is equal to AD square plus DC square by Pythagoras theorem. And in triangle ADB, ADB से क्या आएगा? AB square is AD square plus BD square. ये आ गया, सेम रीजन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आंसर में AD कहीं पर भी नहीं चाहिए, यहाँ पे AD कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, जिससे कि AD स्क्वायर हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, you will get AC square minus AB square is DC square minus BD square. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं AC square which is AB square plus CD square minus BD square. अब साथ साथ मैच करते रहते हैं कि क्या क्या मैच हो गया और क्या क्या अभी मैच नहीं हुआ। तो AC स्क्वायर चाहिए था, वो हमारा मैच हो गया। AB स्क्वायर चाहिए था, वो हमारा मैच हो चुका है। अभी ये चाहिए BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, बट ये हमारा आ रहा है BD स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे हमें BD इस फॉर्म में चाहिए। किसी भी फॉर्म में चाहिए उसको चेंज नहीं करना, जो नहीं चाहिए, जो किसी भी फॉर्म में नहीं चाहिए उसको हटाने। जैसे कि यहाँ पे CD स्क्वायर आ रहा है और CD हमें किसी भी फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे CD को चेंज करेंगे। सो इन प्लेस ऑफ CD वी कैन राइट BD प्लस BC, इसका स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन कर दी, A प्लस B का स्क्वायर, तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 टाइम्स BD इंटू BC माइनस BD स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, तो यू विल बी लेफ्ट विद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.59। सेम ही क्वेश्चन है, बस वहां पे ऑल्टीट्यूड हमारा बाहर था, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड अंदर है। सो गिवन है यहाँ पे ट्राइंगल ABC वेयर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD। प्रूफ, सबसे पहले लिया ट्राइंगल ADC, जिससे कि हमें AC स्क्वायर मिलेगा। सो AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही इन ट्राइंगल ADB, AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अगेन द रीजन इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमें AD नहीं चाहिए, सो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या आएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AC स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आंसर में मैच करके देखते हैं क्या क्या आ गया। तो AC स्क्वायर मैच हो चुका है, AB स्क्वायर मैच हो चुका है, ये मैच नहीं हो रहा, तो BD चाहिए, तो BD को चेंज नहीं करेंगे, CD को चेंज करेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं CD को क्या लिख सकते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग CD इज BC माइनस BD का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सो क्या बनेगा, ये स्क्वायर ओपन कर दो, A माइनस B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस BD स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ओके,
Moving on to the next question, question number 5. In figure 6.60, AD is the median of triangle ABC and AM is perpendicular to BC. So जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 थे उसके जैसे ही है अब ये क्वेश्चन. सो गिवन है यहाँ पे triangle ABC where AD is median and AM is perpendicular to BC. And we need to prove AC square is AD square plus BC into DM plus BC by 2 का square. First part. Second part is AB square is equal to AD square AD square minus BC into DM plus BC by 2 whole square. And third part, AC square plus AB square is 2 times AD square plus half BC square. ये चीज प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. वेरी सिंपल. अगर हमें AC स्क्वायर चाहिए तो ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें AC आता हो. सो इन ट्राइंगल AMC you will get AC square is equal to AM square plus MC square by Pythagoras theorem. और जो ये बीच वाला ट्राइंगल है छोटा ट्राइंगल AMD ये दोनों केसेस में लेना है. सो यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. अगेन द रीजन इज बाय पाइथागोरस थ्योरम. इन दोनों को कर दिया हमने सबट्रैक्ट क्योंकि हमें आंसर AM स्क्वायर ही कहीं पर भी नहीं चाहिए. दोनों में AM स्क्वायर आ रहा है और हमें कहीं नहीं चाहिए तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को कर दिया सबट्रैक्ट. क्या मिलेगा? AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर. तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर. अब आंसर में जो चाहिए उसको रखो, जो नहीं चाहिए चेंज कर दो. AC स्क्वायर और AD स्क्वायर ये हमारे मैच हो चुके हैं. MC ये नहीं चाहिए किसी भी फॉर्म में. MD हाँ ये चाहिए, DM यहाँ पे आ रहा है तो हम MC को चेंज करेंगे. अब MC को देखो क्या लिख सकते हैं. तो MC को हम लिख सकते हैं MD प्लस CD. और जो ये CD है क्योंकि AD हमें मीडियन दे रखा है तो CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज बेसिकली BC का हाफ, BC बाई 2. तो जो MC है इसको हम लिखेंगे MD प्लस BC बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर. अब इसका कर दो स्क्वायर ओपन तो ये आएगा AD स्क्वायर. क्या था ये? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे A प्लस बी का स्क्वायर MD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का स्क्वायर. MD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2 टाइम्स MD इंटू BC बाई 2 और साथ में क्या है? माइनस MD स्क्वायर प्लस का MD स्क्वायर माइनस का MD स्क्वायर ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या? AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस MD इंटू BC. यही चीज हमें प्रूव करनी थी. ओके अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट भी इसके जैसे ही है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट के लिए एक तो ट्राइंगल लिया AMB और AMD. AMD तो दोनों में आएगा छोटा वाला तो पहले लिया AMB. सो इन ट्राइंगल AMB AB स्क्वायर इज AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. और इन ट्राइंगल AMD में क्या आएगा? AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर. सो AD स्क्वायर इज
AM square plus MD square by Pythagoras theorem. सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसको. So AB square minus AD square is BM square minus MD square. तो AB square कितना आ गया? AD square plus BM square minus MD square. ठीक है. अब मैच क्या क्या हो गया? AB square और AD square ये तो हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए. BC और DM की टर्म्स में चाहिए. तो DM ये तो चाहिए, BM को चेंज करेंगे. तो BM की जगह क्या लिख सकते हैं? BM की जगह लिखेंगे BD माइनस MD. BM की जगह आएगा BD माइनस MD. BD माइनस MD का स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर. तो ये हो गया AD स्क्वायर प्लस. अच्छा, BD भी हमें डायरेक्टली चाहिए नहीं, तो BD की जगह क्या लिख सकते हैं? BD इज BC का आधा, क्योंकि AD मीडियन दे रखा है तो BD जो है वो BC का हाफ है. तो ये हो गया BC का हाफ माइनस MD इसका स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर. अब ये स्क्वायर ओपन कर दो. AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी A माइनस बी का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस MD स्क्वायर. 2 से 2 ये कैंसिल हो गया. MD स्क्वायर प्लस का MD स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया. तो क्या मिला? AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का स्क्वायर माइनस BC इंटू MD. ये चीज हमें प्रूव करनी थी. ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आई है और सेकंड इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको कर देंगे सिंपली ऐड. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही. इनको सिंपल ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये तो ऐड हो गए. ये AD स्क्वायर और ये AD स्क्वायर राइट साइड पे ऐड हो गए, ये बन गया ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का स्क्वायर, BC बाई 2 का स्क्वायर, ये बन गया ट्वाइस ऑफ BC बाई 2 का स्क्वायर. और जो ये MD इंटू BC, यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे MD इंटू BC ये माइनस का है, तो ऐड करते टाइम पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर बाय 4. 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया 2 पे, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी. हेंस प्रूव्ड. यही था ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर. थोड़ा क्वेश्चन लंबा जरूर है बट वैसे इतना मुश्किल नहीं है. ओके, so with this we have completed today's session. We'll do from question number 6 to question number 10 in the next video. Thank you so much.